Hello kids. So I am with these bright kids जिन लोग की एग्जाम खत्म होने पर भी उसी दिन लोग ने छुट्टी नहीं मांगी, but they are over here studying with me. So the next generation who are watching this video, learn something from these sincere kids. वरना ऑफलाइन क्लास जो भी हो जाएंगे उसमें सब लोग जिस दिन एग्जाम खत्म होती है उस दिन छुट्टी मांगते हैं। इन महान देखो एंजल्स जैसे, उस लड़की ने एंजल्स का फोटो भी बता दिया थी, एंजल्स जैसे बच्चों को देखो, एग्जाम खत्म हुई तो भी आपके सामने। कुछ लोग की एग्जाम आने वाली है तो भी सच में, कुछ लोग सुबह का भी बैच बैठ के दो बार बैचेस बैठते हैं। तो सीखो। तो इस बैच के साथ हम करते हैं, मेरा और मेरे सारे स्टूडेंट्स का भी, टू बी वेरी फ्रैंक, हम सबका 9th और 10th का सबसे फेवरेट चैप्टर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। ट्रू स्टोरी, इसके अंदर स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी ट्रुथ है, सत्य है और एक्चुअल में हुई है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस स्टोरी? प्लीज राइट एन, एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? प्लीज राइट वाई, so that I would know how many people are participating in this N and Y. Many people don't know it. Very good, very good, very good. Which school had it in the previous? किसी स्कूल को ये पहले पोर्शन में आ चुका है? Had it. Okay. Now, how many of you? I would like you people to write an answer. I will be discussing some PR with you people. Personal response. And I would love if you would write this PR. हितार्थ आपके मन में बेटा जो भी आया ना वो लिखिए आप, रॉन्ग तो रॉन्ग, कैसा भी, बट लिखिए। And I would be happy, Hitarth, Tanmay, and everyone sitting in this session, if you will write some English and give it to me. I don't want, if you can write with ornamental words, it's better. But if can't, better at least just. How many of you wish to save nature? And how would you prefer to save it? Now, when I say nature, it means flora, that is plant life. It means fauna, it means animal life. So I would like to know some innovative ways by which you feel that, yes, I will like to save nature. And I will save it in this way. Any of the particular environmental issues which you are concerned of and you would like to deal with it. Any particular, species of animals which you are concerned about and which you would like to deal with. Let me write down who are writing the answers. Kavya Nayak, concerned with bees, yes. Rudra Trivedi, tigers, yes, I do. White tigers, Srishti. Yeah, you can write in chat, you can write in book, you can write anywhere. In the end, you can send it, whatever you want. जी आकार, I would like to see some. बेटा हमने dogs के लिए बहुत सारे लोग मदद करे। तो यहाँ elephant, tigers, evolution, very good, rhinos. अरे वाह. So we have a lot of animal lovers, nature lovers over here. Very good. Mayur lion, okay, very good. Starling birds. How do you propose anything? Come on. Any one of you are aware of any injustice done to animals and you would like to stop it, and you have some story that I would like to ban on animal hunting and starting animal rescue party in every state? Of course. Very good, Krishna. Nice one. Anyone would like to tell that, yes, sir, this is the thing that is happening. I've heard about it and I would like to stop it. Rhino horn trade, Great Indian Bustard, trees first. Yes, whenever I visit my village, there is a difference of air. Arey what, Tanmay? Cutting of horns of rhinoceros and black market again. Safe pigeons during the kite festival. Very good. Stray dogs. Yes, yeah, you have to. Hunting of rhino horns. Animals hospital. Achha. Killing animals for food. Separating a lion cub from his mother. Well, then in that case, watch the movie Sherry. It's a nice one.
Now out here, sorry. Now out here. Well, so you all are very benevolent. I got approximately 80 responses from so many kids. Claps for you people. Very good. Very attentive है आप लोग. ऐसे ही क्लैप्स आगे आती रहे, भगवान करें. और आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए क्योंकि आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव है जिसमें आपको बहुत सारे जवाब देने हैं. So ये क्वेश्चन आप बाद में आराम से भी लिख सकते हैं. Keep water clean. Nature is the best gift bestowed by Almighty to its fellow beings. Nature teaches us many things. Very good. आप लोग आराम से ये सारे आंसर्स बाद में एक बुक में लिख के भी हमें भेज सकते हैं. हमें यानी कि मुझे अभी over here. Let me start with this story. So माहौल सेट हो चुका है. You people are, all of you appear to be animal lovers who wish to save animals, who wish to save our environment. But you know one thing, आज हमारे इंडिया में इतनी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतने सारे अलग अलग कॉजेस के लिए लड़ रही हैं. Are you aware of any particular social organization which is working for any particular cause? Come on. सर आज क्या केबीसी खेल रहे हो? कितना सारे सवाल पूछ रहे हो. होमगार्ड्स नहीं, होमगार्ड्स नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आप जानते हो जो किसी एनिमल वाली. WCC, व्हाट इज इट फुल फॉर्म? Rudra, that's something interesting. Well, let me tell you about an organization which you people are not aware of. सह्याद्री निसर्ग मित्र. नाम पर से ही हमें आधा पता चल जाता है कि ये आखिर ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए. सह्याद्री पर्वत. सह्याद्री पर्वत कौन सा पर्वत है? वो माउंटेन जो कंटिन्यूअस महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका और नीचे केरला तक एक्सटेंडेड एक बड़ा सी माउंटेन रेंज है, वो सह्याद्री है. अब ये जो पूरे सह्याद्री बेल्ट है, वहां पे जो नेचर है नियर द बीचेस, इन द सह्याद्री जंगल्स, उनको many of the species are hunted, many of the species are killed for commercial purposes, and many villages में कई स्पीशीज के साथ वो लोग क्या क्या करते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ही गुस्सा भी आएगा और आश्चर्य भी होगा. अब ये जो ग्रुप है ये हर जगह घूमता है और बहुत सारे नेचर रिलेटेड एक्ट्स करता है. इनकी आइडियाज बहुत इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग है. इनकी आइडियाज आपकी आइडियाज, दे आर यूथफुल आइडियाज. Your generation, I don't know what others say. I feel your generation is the best generation. Yes. क्यों? क्योंकि ये आइडियाज आप ही के जनरेशन वालों की आइडिया है. मेरी वाली थोड़ी गड़बड़ वाली थी. तो चलिए जरा ये क्या आइडिया है, क्या हुआ, ये सब के बारे में हम देखते हैं. कहानी ऐसे शुरू होती है. सह्याद्री निसर्ग मित्र जिसके एक्टिव ऑर्गेनाइजर है भाऊ कटदरे. भाऊ कटदरे ये लोग नेचर लवर्स हैं और यू नो दे गो टू ऑब्जर्व एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ इन वेरियस पार्ट्स एंड देन दे डू एक्टिविटीज फॉर देयर सेविंग एंड ऑल दैट. आप लोग कहीं स्पेसिफिकली गए हो कोई पर्टिकुलर एनिमल देखने को? आप में से कोई बर्ड्स वॉचिंग करना पसंद है किसी को? और कोई सुबह कभी गए? वेरी फ्यू गर्ल्स एंड बॉयज डू दैट. आई डोंट नो व्हेदर यू हैव डन इट और नॉट. कहाँ गए हो, क्या देखा है, कहाँ पे गए हैं आप? नहीं गए और जाना चाहते हैं, कहाँ जा सकते हैं? यस यू कैन. वेल, भाऊ कटदरे एंड हिज ग्रुप, वो लोग समर में उस साल सी ईगल्स ढूंढ रहे थे. क्या ढूंढ रहे थे? सी ईगल्स, व्हाइट बेलीड, जिनका पेट व्हाइट हो. उनके बारे में पता था कि भाई दे आर मूविंग, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रहे थे. दे वर सर्वेइंग, गेटिंग द सर्वे अबाउट देम. कोस्ट पे वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो उनके जो एक वॉलंटियर्स थे उन्होंने देखा, अरे यार यहाँ पे पूरे कोस्ट पे थोड़े खड्डे हैं विच आर नॉट सो डीप. आखिर ये खड्डों का चक्कर क्या है? और बाजू में एगशेल्स हैं.
बाजू में क्या है? एग शेल्स। यस, मेरे साथ बोलते जाओ, पता चलना चाहिए मिथुन सर का लेक्चर चल रहा है यार। घर में जोर जोर से बोलो, आजू बाजू कोई भी है परवाह नहीं, लेट अस डिस्टर्ब एवरीवन, उनको दिखे। और मैं अभी भाव कट कर रहे, मैं तो बीच पे पहुंच चुका हूं, तुम लोग मेरे साथ हो ना बीच पे? पूरा ये सब कुछ हट गया मेरे यहाँ से, फ्रेम सब हट गई, मैं बीच पे हूँ, आओ। वेव्स है, वेव्स, हाँ हाँ, ओह ए पैर पे आई वेव्स, अरे वाह 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 वाह, वी आर मूविंग मूविंग अहेड, यस, कैन यू? एंड वी आर सोशल वर्कर्स, हम लोग एनिमल्स रक्षक है, हम लोग ने ऐसे एक टोपी भी पहनी है, सह्याद्री निसर्ग मित्र एसएनएम, बराबर? हाँ है ना, टोपी पहनी है कि नहीं? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी आर सर्विंग द व्हाइट बेलीड सीगल्स इन समर। जैसे ही हम कोच में घूम रहे थे, हमारा एक वॉलंटियर मिस्टर एसकियल, उसने बोला यो वो देखो जी, क्या है वो? तो ये खड्डे हैं यार, और वो भी ज्यादा गहरे नहीं है, व्हाइट एगशेल्स है बाजू में, बाजू में विलेजर्स थे, तन्मय अपने गांव के विलेजर्स थे ना, पूजा तात्या काय रहे हैं, या टर्टल एग्स, टर्टल। और यहाँ पे हाँ, हम लोग कोंकण बेल्ट में बहुत घूमे भाई, हमें कभी टर्टल एग्स नहीं दिखे इंडिया में, क्या बात कर रहे हैं? आमचे गावात तर दिसतात आम्हाला, तुम्हाला माहित नाही का? इकडे येत, हम लोग आश्चर्य में, क्या बात कर रहे हो यार? हमने बोला ये तो अनयूजुअल बात है इंडिया में, और वो भी यहाँ पे कोंकण बेल्ट में, और वो भी टर्टल्स, वी नेवर न्यू इट। चलिए इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। हमने देखा कि बीच जहां पे हमें ये एग शेल्स मिले थे, उसको सील कर दिया है पब्लिक के लिए 1 महीने से। सत्या सील क्यों किया? यार तो कई लोग थे ना, चांद का ईंट स्मगल करते थे इधर, सिल्वर ब्रिक स्मगलिंग चल रहा था, या पुलिस है या पूरा ऐसा ही बंद, पब्लिक पब्लिक नहीं जाने देते इधर। अच्छा, मतलब एग्स का क्या चक्कर है, एग्स फूटे हुए क्यों है? अब आगे हितार्थ हमें जो पता चला ना, मैं एज वेल एज आप जब इस बात को विजुअलाइज करोगे, इफ यू लव ह्यूमन, इफ यू लव लाइफ, you will not love what you are going to hear. So listen carefully with videos on. हमें उस वक्त सबसे पहले एक बात पता चली कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में कोस्ट लाइन पे, पूरी कोस्ट लाइन पे टर्टल्स अपने घोंसले, अपना नेस्ट इन खड्डों में बनाते हैं, बराबर? अब इन टर्टल्स के बारे में मैं आपको कुछ खास इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। सबसे पहले, डू यू लाइक टर्टल्स? कभी टर्टल्स के साथ खेले हो, कभी टर्टल्स को हाथ में लिया है? अगर आप में से कोई श्रीनाथ जी जाता है तो वहां पे एक स्पेसिफिक एक जगह है, वहां पे वो टर्टल्स कुएं के पास होते हैं और लोग उनको ककड़ियां खिलाते हैं। अब आपको पता है समुद्री टर्टल 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5 भारत में मिलते हैं, 5 आर फाउंड इन इंडिया। ऑलिव रिडली का नाम बड़ा फेमस है, उन्होंने टर्टल्स पर काफी रिसर्च किया है, तो ऑलिव रिडली ने हर टाइप के टर्टल्स निकाले और कहते हैं वो टर्टल्स पूरे महाराष्ट्र की कोस्टलाइन में मिलते हैं। ग्रीन टर्टल और हॉक्स बिल, मैं उनकी फोटो भी बताऊंगा, वो भी मिले। टर्टल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जब भी एक फीमेल टर्टल मैच्योर हो जाती है, दैट इज आफ्टर नियरली अ गैप ऑफ 15 ईयर्स। कितने साल बाद? 15 ईयर्स, बोलते जाइए जोर जोर से, 15 ईयर्स। वो वापस शोर किनारे पे आती हैं, एग्स ले करती हैं और चली जाती हैं। सर कौन से किनारे पे, कहां पे? वेल दैट्स द अमेजिंग थिंग, नो वन नोज व्हाई एंड हाउ डज शी नो इट। उसके पास कोई गूगल या नेविगेटर भी नहीं है, एलेक्सा भी नहीं है, सिरी भी नहीं है, फिर भी एग्जैक्टली वो टर्टल जहां पे बॉर्न हुई थी, वहीं पे वो अपने बहुत सारे अंडे छोड़कर जाती है, बराबर? फीमेल कम्स ऑन द शोर, मेक्स अ नेस्ट, lay her eggs and returns to the sea. अभी बच्चों का उसको ऐसा कुछ नहीं कि वो संभालेगी ऐसा कुछ, अंडे डाल दिए, वो निकल गई, उसको कुछ नहीं पड़ा अंडे का जो भी हो। ये एग्स 45 to 50 डेज के बाद हैच होते हैं,
बट अगर आप में से किसी को जानकारी होगी तो एग्स को हैच करने के लिए सबसे पहले उनपे मुर्गी अपने अंडों पे बैठती है, उसको हीट प्रोवाइड करती है। तो ये एग्स कैसे हैच होते हैं? नेचुरल हीट। और जैसे ही इनमें से मस्त ऐसे टर्टल्स बाहर आते हैं, टपुक 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 टपुक, ये टर्टल सीधा समुद्र में चले जाते हैं और वहां पे उनके लिए कितने सारे खतरे होते हैं। दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स, अलग अलग चीजें। उनकी सर्वाइवल रेट कितनी है पता है? अगर 1000 टर्टल्स होंगे ना, तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 सर्वाइव हो पाते हैं। 1000 टर्टल्स में से मुश्किल से 1 या 2 सर्वाइव हो पाते हैं। एंड टर्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम ऑफ द सी। अब 1000 टर्टल्स में से सिर्फ 1 या 2 सर्वाइव हो पाते हैं, क्योंकि ना उनके पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं, वो तो सीधे जाते हैं और कबीरा टाइप अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। तो आज इन टर्टल्स को बचाना तो बहुत जरूरी होता है। मगर यहाँ पे तो अंडे फूटे हुए थे, ये केस क्या है दया? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये केस क्या है इस कोस्ट लाइन पे, इस गांव में चक्कर क्या है? तो विलेजर ने जो बताया वो आप सुन के आप दहल जाओगे। वेल, टर्टल्स अपने नेस्ट बनाते हैं। गांव में कुछ लोग होते हैं जो सुबह को बीच पर ऐसे ही घूमने आते हैं इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। जब भी फीमेल टर्टल शोर पर आती है, नेस्ट बनाती है और अंडे डालती है, फीमेल टर्टल की एक आदत है, वो जैसे ही वापस जाती है तो एक ट्रेल छोड़ जाती है, जस्ट लाइक द ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड। अब ये गधेड़े लोग, ये ह्यूमन बीइंग्स, जिनको डोंकीज भी कहना डोंकीज का अपमान होगा, उन्हें हम एग हंटर्स बोलते हैं, ये इस ट्रेल को फॉलो करते हैं और नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। ये नेस्ट आधा मीटर डीप ही होता है। दे डिग अप द नेस्ट और उस टर्टल के डाले हुए पूरे 100 to 150 एग्स चुरा लेते हैं, खा जाते हैं या तो इनको सेल कर देते हैं। ऑलरेडी टर्टल्स, एक टर्टल आप बोलो 100-150 अंडे देता है, चलो कितनी बड़ी बात है, बराबर। ऑलरेडी ऐसा हालत है कि 1000 में से सिर्फ 1 या 2 टर्टल सर्वाइव होते हैं। अगर बाहर आए तो ये तो उनको बाहर निकालने से पहले ही मार दिया जाता है। आगे जस्ट इमेजिन करो क्रुएल्टी। इमेजिन इफ द टर्टल इज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये करना बराबर होगा? इमेजिन करो इफ अ टर्टल इज स्पॉटेड व्हाइल इट इज स्टिल लेइंग एग्स, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? चुपचाप साइड पे बैठते हैं, अलाउ इट टू लिव टिल द लेइंग इज ओवर। और जैसे ही एग्स ले डाउन किया जाता है, उस टर्टल को मार के उसको भी खा जाते हैं और उन अंडों को भी खा जाते हैं। डू यू थिंक दिस इज गुड? दिस इज फेयर? ये वायलेंट और रुथलेस प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो रही है। भारत में तो हमारी सरकार ने सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन दी है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब टर्टल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज टाइगर्स। इसलिए अगर टाइगर्स को मारना एक अपराध है, तो इन टर्टल्स को मारना भी इक्वली अपराध है। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है वो ऑफ कोर्स इज डन इन अ हश हश मैनर। बट दिस इंफॉर्मेशन वाज डिस्ट्रेसिंग। अभी क्या करें क्या इधर? आज गांव वालों में से आप एक गांव वाले को पकड़ोगे, 2 को पकड़ोगे, 3 को पकड़ोगे, मगर एवरीडे वो सह्याद्री इंश्योरेंस मित्र ऑर्गेनाइजेशन वहां पे रहेगी, उसमें लोग कितने हैं और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है। और सबसे पहले उनको पता ही नहीं था कि अरे यहाँ पे टर्टल्स हैं और इतनी तादाद में है, इतनी में है, और इस तरह इनका मर्डर हो रहा है बॉर्न होने से पहले ही। तो क्या करें? टर्टल को कासव बोलते हैं। गांव के विलेजर्स को भी देखो तो विलेजर्स बोलेंगे आमच्याकडे काय कारोबार वारोबार काय नहीं, हमारे पास कहाँ कुछ काम धंधा है, खाने को मिलता नहीं तो मिले तो कुछ खा लेना। अंडर इलिटरेसी है वहां पे। क्या करें? आई होप सो नॉट गेटिंग बोर्ड। इफ नॉट गेटिंग बोर्ड, ईमानदारी से नॉट गेटिंग बोर्ड तो एन, गेटिंग बोर्ड तो वाई लिखो, तो मैं फास्ट करूं या तो फिर ऐसे करूं। वाई भी लिख सकते हो। अच्छा, गेटिंग बोर्ड, एक बंदा बोर्ड हो रहा है।
Want to know the story ahead? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन निकालोगे? किस तरह विलेजर्स को रोकोगे? और एक तरफ इंसान की भूख और इस तरह एक तरफ जानवर की प्रोटेक्शन। कि कई बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आज एक इंसान बोले अरे मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं खाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, और मैं जीने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, जो आजू बाजू एनिमल्स है उनको मार के खाऊं। उन एनिमल्स को ही बचाना है और उस इंसान को भी बचाना है। क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन? वी हैव टू डू समथिंग। हाँ तो कमा के खाओ, मगर कमाने के लिए क्या कुछ? और इन टर्टल्स को एक दिन बचाएंगे, 2 दिन बचाएंगे विलेजर से, आगे क्या? मेक देम एजुकेट एंड ग्रो मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। कोस्टल एरिया है, हाउ कुड वी हेल्प देम? प्रोटेक्शन अराउंड द कोस्ट लाइन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, यस, मेक द पीपल लिटरेट, फार्मिंग, ये सब हम जानते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। The cities have more ways and stores. They should be supplied some grains. बेटा फ्री में कभी किसी को कुछ मत दो। Ship the turtle eggs to a safe place. Yes, that's one of the solution. मगर उसके बाद क्या? आज आप शिफ्ट करेंगे, ये सह्याद्री निसर्ग मित्र करेंगे, बराबर 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद वो लोग वहां पे उस गांव में हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते ना। हमारे इंडिया में कितने सारे गांव हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उनके सामने कितनी कम। तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन हर जगह तो नहीं जा सकता ना। तो वहां पे तो किसी कॉमन मैन को आगे आना पड़ेगा ना। सेंड अ स्पाई इन द विलेज टू, मगर उसको पगार कौन देगा? कि यहाँ पे इस काम के लिए पैसे कौन आएगा? ये सब चीजें पैसों पे आके अटक जाती हैं। चलिए देखिए सह्याद्री निसर्ग मित्र ने इसको कैसे सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को। अगर हम सब, चलो हम सब सह्याद्री निसर्ग मित्र के बंदे हैं, हम लोग पहुंच गए और सोच रहे हैं क्या करे सर, इफ यू गिव हिम 100 eggs, I will give him 100 rupees। हाँ ये भी एक अच्छा टेक्निक है। वाह पार्थ, 1-1 रुपए एक एग। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले सह्याद्री निसर्ग मित्र ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे वी विल स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। सबसे पहला पार्ट उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट, इट्स अ डिफिकल्ट वन बट लेट्स टेक इट। तो ले लिया। ईगल्स की प्रोटेक्शन पे जा रहे थे, टर्टल्स की प्रोटेक्शन पे आ गए और उन्हें किया। मगर उन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था सी टर्टल्स के बारे में। तो सबसे पहले टर्टल्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। हम सब सह्याद्री निसर्ग मित्र के मेंबर्स हैं, तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं। हम उन इंस्टीट्यूट्स पे गए हु आर वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स। उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आप लोग तो करते हो। तो व्हाट टू डू सर? We go and explain them, the next day it's the same story. The next day it's the same story. गांव वाले समझते ही नहीं, समझाया जाए और यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है सर, बहुत सारा सुपरस्टिशन है सर, व्हाट कैन वी डू सर? ओके, वेल इस जगह का नाम क्या है? वेलास, तालुका मंदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। ये होगा हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। तो shall we start with experiment protection turtles? हमारे इस मूवमेंट में हम लोग क्या करेंगे? वेल इस मूवमेंट का नाम रखते हैं BBR, भक्षक बना रक्षक। CBP, चोर बना पुलिस। मतलब समझाता हूं, चलो आगे। पोस्ट पे बोलो भी होगी, अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कि चलो पोस्ट लाइन पे एक आइडिया है, चलो चलो कल सुबह को मिलते हैं। हम लोग बोले ओके ओके मिलते हैं। चलो सब यंगस्टर्स थे तुम लोग की तरह, बोला कुछ करते हैं। पहले प्लान कर दिया टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास, तालुका मंदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। यहाँ पे हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मिस्टर काव्या शाह से मिले। हेलो सर, यू विल हेल्प अस, आपको हमारे साथ होना है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन फ्यू लोकल पीपल, कुछ लोकल पीपल को पकड़ लिया। या तन्मय भाऊ,
येतो का आपल्या गावातील का रे यार, येतो ना, हाँ हितार्थला घेऊन रे। कुछ लोकल लोगों को लिया काम में, बोला भाऊ बुलाया क्यों है, क्या करने का है। ये देखो आज से हम लोग एक काम करेंगे, एक बात पता है, वेलास में आप लोग वेलास का चप्पा चप्पा जानते हो, तन्मय हितार्थ काव्या से, आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो, आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। टर्टल्स के लिए कैंपेन की इंफॉर्मेशन निहाल के द्वारा हमें मिल गई है। निहाल जो के टर्टल प्रोटेक्शन, आई मीन टू से इंस्टीट्यूट है, आप लोग टर्टल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो बराबर। हम लोग एक काम करेंगे, जो ये लोकल पीपल है उनको हम लोग कन्विंस करते हैं दैट व्हेन दे कम अक्रॉस अ नेस्ट, उनको केयरफुली वो एग्स नेस्ट में से निकालने और उनको बाजू में ही एक पिट में उसको बरी कर देना है और उसको वायर फेंसिंग से प्रोटेक्ट करना है और आपको देखना है कि भाई ये प्रोटेक्ट हो। तो कह रहे हम लोग हमेशा थोड़ी रह सकते हैं, तो वे देखते हैं। तो वो लोग छुप गए, वो लोग एक दो दिन वहां पे गए और एक दो दिन छिपे। एक दिन ये शुभ आया, उसने देखा यार टर्टल के ट्रैक्स, आज तो खाने में टर्टल एग्स मिलेगा, वाह। वो देखते 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 पहुंचा, खड्डा दिखा, ए अंडा उठा रहा था, पीछे से आके पकड़ा, यार काय करतोस रे, तेरे को पता है टर्टल प्रोटेक्शन एक्ट, ये देख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर है कि क्या मैं गरीब आदमी, मैं गरीब, क्या कर रहा है, तो साहब माफ कर दो, माफ कर दो। भाई फाइन लगेगा, जेल में जाना पड़ेगा, साहब कुछ पी लो, बराबर कर दो। एक काम कर, तो क्या साहब आज से तू के एम बन जा, मतलब कासव मित्र, मतलब तुझे अगर चाहिए हम छोड़ दे तेरे को, तो आज से ध्यान रख तू हमेशा इधर घूमेगा, जब भी अंडा दिखा इसको फोड़ने का नहीं, इसको लेके आ दूसरे पिट में डाल देने का, उसमें उसको सेफ रखने का, ये अपना एक पिट है उसमें, और उसके वायर फेंसिंग है, प्रोटेक्ट करते जाने का। और अगर कभी ऐसा दोबारा दिखा ना, टपली मारा उसको तन्मय ने, टपक टपक, समझा ना रे भाऊ, मैं प्रोटेक्ट करें, मेरे को पता है कौन कौन चोरी करता है गाँव में, अभी उन सबका नाम बोलेगा मैं तुमको, चलेगा चलेगा। और अंडा लेके किधर रखने का, उधर। इस तरह उन लोग ने कई लोगों को पकड़ा, और जिनको भी पकड़ा उनको मैंने बोला ना, भक्षक बना रक्षक, चोर बना पुलिस। नेक्स्ट डे पार्थ वारू दिखा, उसको भी टपली मार के, या माफ कर माफ कर माफ कर, मैं तो अंडे का शेप देख रहा, अभी से क्या करेगा, अंडा दिखा क्या करने का, उधर डालने का, वायर फेंसिंग है, और देख कोई दूसरा हो ना तो हमको बता, उनको छोड़ दिया। इस तरह पहले महीने में, इन द फर्स्ट मंथ they saved 50 nests. In the first year they could successfully protect 50 nests. एक नेस्ट में कितने एग थे, 100 to 150, तो 50 नेस्ट में आप अंदाजा कर सकते हो। अब वो सारे एग्स एक साथ एक जगह पे थे। अब गांव के सभी चोरों को तो पकड़ नहीं सकते थे, मगर इस गांव को रियलाइज करवाना था कि जो टर्टल्स हैं वो तुम्हारे गांव की सबसे बड़ी वेल्थ है। अब सारे अंडे एक साथ रखे गए, पूरे गांव वालों को बुलाया गया। जो दिन पे, इमेजिन करो ये सीन, सामने बीच दिख रहा है, वेव्स दिख रही हैं, और यहां पे एक साथ सब अंडे रखे हुए दिख रहे हैं। हाँ, सब गांव वाले आजू बाजू साइड पे खड़े हुए हैं, तात ये काय होणार, ये कासव निघणार र, का सांगतात का, हाँ कासव निघणार, या का बोलतात, बघ 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 हे कासव निघणार। सब लोग खड़े हुए, तात्या कधी बघितलं नाही ना, बघ बघ इतनी अंडा इतना साफ निकलेंगे, हाँ हाँ निकलेंगे निकलेंगे, देखो देखो देखो। सब लोग उधर खड़े रहे। आप सब गांव वाले हो, मेरे साथ इस माहौल को फील करना। सब देख रहे थे, एक साथ अंडा है, देखो वो फूट रहा है टपुक टपुक। दूसरा बोला राधिका ने, वो फूट रहा है फुटुक फुटुक। रिया ने बोला वो फूट रहा है फुटुक फुटुक फुटुक। और एक साथ जो इतने सारे अंडे थे, प्रॉपरली टाइम्ड, प्रॉपरली एक साथ, वो सारे जो अंडे एक साथ रखे हुए थे,
वो अंडों में से एक साथ बेबी ठपक 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 करके बाहर निकले, और सारे हैचलिंग्स, इतने सारे टर्टल्स, छोटे छोटे टर्टल्स एकदम ऐसे दुड़ू 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 भागते हुए सीधा वो लोग पानी में गए। सब लोगों ने तालियां बजाई, तालियां बजाओ जोरों जोरों से, वाह वाह ग्रेट। सब लोग चिल्लाने लगे, तन्मय सीटी भी बजा सकता है यार, बेवकूफ कैसे दौड़ू दौड़ू रहो, तो सीटी बजाओ, तालियां बजाओ, कमान कमान, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मगर शोर जोरदार होना चाहिए। कोई सीटी भी बजा सकता है, थाली भी बजा सकता है, ताली भी बजा सकता है। टर्टल्स को भागते हुए देख रहे हो ना, एक्साइटमेंट फील हो रही है ना, कितने सारे छोटे छोटे टर्टल्स जा रहे हैं ना, जस्ट इमेजिन करो, इतने सारे टर्टल्स, एक टर्टल दूसरा टर्टल, इतने सारे टर्टल्स एक साथ, ऐसे छोटे छोटे टर्टल्स भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कम ऑन, बी एक्साइटेड, क्लैप फॉर इट। हाँ, सीटी भी बजा सकते हो, थाली भी बजा सकते हो। या ताली बजाओ, हिप हिप हुर्रे। आया ना, मजा आया वो टर्टल्स देखने का? कैन यू सी दैट? कितने छोटे छोटे, कितने क्यूट है यार, एकदम आप सबकी तरह क्यूट, ऑपोजिट ऑफ ऑब्ट्यूस, एक क्यूट। पीछे भी आ गया, बराबर। कितने सारे टर्टल्स, कितने सारे टर्टल्स, देखो भाग रहे, देखो कियारा, तू मत भाग उसके साथ, रोक 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 कियारा। हाँ चलो, दिखे इलोनी, पृथ्वी देखे सब टर्टल्स को? वाह, व्हाट अ सीन दैट वाज। गांव वालों ने, सब लोग ने बोला, सब लोग खुश है, कितनी सूरज दिसतात रे, ये तो पहली बार देखा। सब लोग ने जो तालियां बजाई हैं, छोटे बच्चे तो नाचने लगे थे, ऐसे पास एकदम नाचने लगे थे सब लोग। अरे बाप रे, कुछ एल्डरली विजिलेटर्स, जो बूढ़े विजिलेटर्स, अरे मैं तो अपने स्कूल में था ना, तब से टर्टल के अंडों को चुरा के खाता था, ये पहली बार मैंने इनको ऐसे भागते हुए देखा है। सच बोलूं शहरी बाबू, ओ बाबू, सच बोलूं, अब इनको मैं कभी नहीं, अभी नहीं खाने का, इनको बचा के रखना। मौत से ज्यादा जिंदगी बहुत सुंदर दिखती थी, ये जिंदगी बहुत अच्छी थी यार, देखने में मजा आया। अब वहां पे आप लोग जैसा एक अच्छा सा इंस्टाग्रामर और फेसबुक बंदा था, उस बंदे ने ये पूरा रिकॉर्डिंग किया। कौन है आप में से जो कोई भी इंटरेस्टिंग चीज देखता है, तुरंत रिकॉर्डिंग करके फेसबुक, इंस्टा, उन सब पे डाल देता है? हाँ, ये बंदे ने वही किया, और ये सबसे वाइज चीज है। क्यों? क्योंकि ये बातें फैली, और ये विलेज जो कहीं टूरिज्म के मैप पे नहीं था, विलास, तालुका मंदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, सब जगह से इंक्वायरी आने लगी, हे व्हाट इज दिस। बंदे ने टाइप कर दिया, हैशटैग कासव महोत्सव टर्टल फेस्टिवल, हे व्हेन इज इट अगेन। बोल दिया चलो इतने टाइम बाद ये होता है, तो ये एक दिन फिक्स कर दिया। ये गांव टूरिज्म के मैप पे आ गया। ये गांव में होटलें नहीं थी, तो एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट आया। कौन सा पता है? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ नॉट, आई एंजॉयड इट इन द तरकरली वंस। होम स्टे। यू नो व्हाट इज होम स्टे? एनीवन अवेयर? हाउ मेनी आर यू अवेयर ऑफ होम स्टे? वेल, गांव के जो लोग हैं, ये जो रिमोट एरियाज में गांव है जहां पे नेचुरल ब्यूटी है, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में, गांव में घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अपने ही घर का एक हिस्सा होटल की तौर पे मस्त सजा सजा के रख देते हैं। इट्स लाइक हमारा विलेज घर ही होता है। आप वहां पे जाते हो, वहां पे आपको सब, मैं तरकरली में गया था, तरकरली में वहां पे मैंने होम स्टे किया था, तो ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, वो लोग गांव वाले ही होते हैं। यू गो ओवर देयर, आपको मस्त बेड सादा होता है, ऐसा छोटा सा पुराने जमाने का गीजर होता है, एकदम सस्ते रेट्स होते हैं, और खाना इट्स लाइक वो लोग जो अपने लिए खाना बनाते हैं, वैसी तरह हमारे लिए खाना बनाते हैं। एंड किसी होटल में इतना डिलिशियस फूड नहीं होगा जो उधर गांव में होता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। या ऑफ कोर्स लग्जरी नहीं होती, मगर पूरा रस्टिक चाम होता है।
और अपने विदेशी चमकार, सफेदी की चमकार को तो ये सब ज्यादा पसंद आता है, रस्टिक। Oh, so small room. Oh, this is Katla. You tell it Katla. Catchla. What is this? Catchla. Oh, the Jopri. Hello, the Jopri. उन लोगों को ये सब पसंद आता है। बस ये शुरू हो गया होम स्टे फैसिलिटीज, बराबर, हाँ या ना। अब जिन लोग को ये होम स्टे फैसिलिटीज चालू की, उन लोग के वहां पे लोग आते क्यों? Why would visitors and tourists come over there? What was the main reason for tourists coming on to a place known as Velas, Taluka Mandangarh, district Ratnagiri, which was nowhere on the map? Now people storming from all the area coming there. Why? Can anyone tell me? What was the reason? Exactly, very smart people. Sea turtles को देखने के लिए. That means sea turtles became the source of income. आज पता है हम क्लास में जाते हैं तो क्लास को ऐसे अंदर क्यों? बिकॉज दैट्स अवर सोर्स ऑफ इनकम। एक बंदा जो चीजें बेचता है तो तराजू होता है, तो तराजू को ऐसे करता है सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है उनको हमारे इंडिया में रिस्पेक्ट करते हैं। कई लोगों के वहां पे इंक्लूडिंग अवर क्लासेस, वहां पे चप्पल पहन के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो मंदिर होता है। तो आज सी टर्टल्स इन लोग के लिए क्या बन गए? द सोर्स ऑफ इनकम। दैट मीन्स सी टर्टल्स उनके लिए क्या हो गए? something which is sacred, something which is precious। कभी कोई sacred और precious चीज को काट के खाएगा? अभी भाऊ कटजरे को पता था सह्याद्री निसर्ग मित्र की ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए पूरी लाइफ लॉन्ग यहाँ पे रहने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे गांव वालों के द्वारा ही इन टर्टल्स का प्रोटेक्शन हो सकता है बेहतर ढंग से। तो जितने लोगों ने ये होम स्टे शुरू किया, उन लोग ने मिलकर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ही काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वही लोग थे जो पहले टर्टल के अंडे खाते थे, अभी टर्टल को बचाते हैं। भक्षक बने रक्षक, बराबर, चोर बना पुलिस, सीबीपी। अभी ये लोग टर्टल्स के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी संभालते हैं। इनफैक्ट ये लोग पैसे जमा करते हैं होम स्टे में से, ताकि टर्टल्स के लिए वो लोग फैसिलिटीज कर सके यहाँ से। इनफैक्ट जो बंदा सबसे ज्यादा टर्टल्स बढ़ चढ़ के टर्टल्स को बचाता है, उसको साल के अंत में एक अवार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड, अर्थात मराठी में बहुत ही क्यूट नाम है इसका, कासव मित्र। समझ में आया? वेलास में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, बराबर। फिर 5 साल में महाराष्ट्र की पूरी कोस्ट लाइन सर्वे की गई और 80 विलेजेस में टर्टल नेस्ट मिले। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी। जो लोग एग्स चुराते थे, सुबह को जाके उनको पकड़ो। काय करतोस रे? या काय नाही, अंडा बघितलं मिळालं। जेलमध्ये जायचंय? या फॉरेस्ट ऑफिसर किधर गया अपना? ओ फॉरेस्ट ऑफिसर भाई साहब, गायब हो गए वापस। जेल में जाने का है? नहीं नहीं, माफ करा माफ करा। चलिए बात, और वो पूरा साइकिल चालू। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी। टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड्स भी चालू किया। इनफैक्ट टूरिस्ट को कैसे बुलाया जाए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट बनाई गई, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स। और 2006 में शुरुआत हुई इस नोवेल कॉन्सेप्ट की, टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव। एक टूरिस्ट को अपॉर्चुनिटी दैट यू कम एंड विटनेस दिस यूनिक स्पेक्टेकल। कैसे हैचलिंग्स बाहर निकलते हैं और दुड़ 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 जाते हैं। हम लोग ने तालियां बजाई थी ना उसके लिए, वो कॉन्सेप्ट के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई गई ऑन टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोंकण। एक बात थी कि भाई आज ये हैचलिंग्स, आज इतने सारे टूरिस्ट आएंगे, तो कैसा लगेगा अगर आप कुछ कर रहे हो, आप खेल रहे हो और आजू बाजू सब लोग देख रहे हैं आपको, ए कैसे खेलता है ये शू, कैसे खेलता है ये हेत, कैसा लगेगा? वुडंट यू फील ऑकवर्ड? तो टर्टल्स को भी नहीं लगता होगा। तो ध्यान रखा गया कि भाई चीजें खास दूर रखी गई ताकि टर्टल्स को प्रोटेक्शन इनफ मिले। दे आर नॉट harmed by the slightest harm by the tourist activity। टूरिस्ट को एकोमोडेट करना इन द होम्स ऑफ विलेजर्स, तो होम स्टे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। टर्टल फ्रेंड्स क्लब बन गया वहां पे हर विलेज में,
और उसके मेंबर्स कौन? जो लोग होम स्टे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। हर विलेजेस सेम रेट प्रोवाइड करेंगे होम स्टे से, ताकि उनमें अंदर अंदर कंपटीशन ना रहे, बराबर। और 10% इनकम का टर्टल प्रोटेक्शन फंड में, तो अभी फंड का भी कोई चक्कर नहीं, होम स्टे से कमाई हुई और उसी का 10% किसको? टर्टल प्रोटेक्शन फंड को, और ये फंड से टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने मदद की। ये फेस्टिवल ये जो पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर्स पे पहुंचा, पूरे लोग यहाँ पे आने लगे, अलग अलग जगह से कोनकन में आने लगे, ज्यादा से ज्यादा विलेजर्स आगे आए। आज होमस्टे फैसिलिटीज 35 फैमिलीज प्रोवाइड करती है और हर साल 800 लोग वेलास में आते हैं टर्टल सीजन में। दिस मेंट मोर बिजनेस फॉर विलेजर्स। और पता चला कि टूरिज्म इज अ सोर्स ऑफ इनकम। टूरिस्ट मनी लाते हैं और उसी पैसे से इट वाज इम्पोर्टेंट, इससे टर्टल हैचलिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बराबर। अभी इन लोग को पता चल गया कि टूरिस्ट पैसा लाएंगे, मुझे टूरिस्ट चाहिए और पैसा चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? टर्टल्स। अगर टर्टल्स नहीं तो टूरिस्ट नहीं, और टूरिस्ट नहीं तो पैसा नहीं। दिस इज ब्रेन, बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को, इसका नाम भी बहुत ही यूनिक है, शायद आप समझो तो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड। मस्त बोला है सर, मगर समझ में नहीं आया। यानी कि लाइवलीहुड मींस जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम चले, जिससे आपको पैसा मिले। और जब आपको पता चलता है कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप नेचर की रक्षा करोगे, तो आप नेचर की रक्षा अपने आप करोगे, क्योंकि नेचर की रक्षा से पैसे मिलते हैं, उसी पैसे से नेचर की रक्षा होती है, नेचर की रक्षा से पैसे मिलते हैं, उसी से नेचर की रक्षा होती है। तो इस प्रकार नेचर भी खुश, इंसान भी खुश। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्टे एमिकेबली विद नेचर। यार मत जो बड़ी बड़ी ऑल दैट इंडस्ट्रीज और वो सब ये चालू है कोनकन में, पॉल्यूशन रोककर आप थोड़ा सा पैसा कमाने की ग्रीड कम करो और आप पॉल्यूशन रोक सकते हो। वो सब बातें साइड पर, बट वेलास एक सक्सेस स्टोरी बन गई। सह्याद्री नेशन मित्र ये ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि एक्चुअली दिस इज समथिंग, आई होप सो नॉट बोर्ड, क्योंकि लास्ट 5-10 मिनट्स यहाँ चाहूंगा और एक बात बोलने की। क्या पता आप में से कोई कल मेरी इस बात को आगे लेके जाए और शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी एक बहुत बड़ा काम करें, किसी नेचर को प्रोटेक्ट करके या किसी विलेज को प्रोटेक्ट करके, और शेयर भी करना मेरे साथ। क्या पता आप लोग में से कोई एक रिवॉल्यूशनरी बन जाए जो ऐसे सब काम करे। तो आगे का लास्ट पैरा कंटिन्यू करूं, होप सो नॉट बोर्ड, होप सो यू आर विद मी, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट रहता है ऑनलाइन क्लास में 30 मिनट्स 1 मिनट 30 सेकंड 1 आवर तक इंटरेस्ट करने लगना, क्योंकि स्टार्टिंग में सब वीडियोस ऑन होते हैं, बाद में वीडियोस बंद होने लगते हैं और एहसास होने लगता है अरे पीछे से बंदे गुल हो रहे हैं। हो ना, इधर बोर नहीं हो रहे हो ना? लास्ट पैरा जानना है ना क्या है? तो लास्ट पैरा जरूर जानिए। सह्याद्री निसर्ग मित्र एक ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि इट इज ओनली द लोकल विलेजर्स हु कैन अल्टीमेटली ऑफर एक्सीलेंट प्रोटेक्शन टू द लोकल स्पीशीज। और अगर इन लोकल पीपल को साथ में ले लिया तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल बन सकते हैं, कैन बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। इसलिए अब ये प्रोजेक्ट हमने वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया, काव्या शाह संभालेगा ना, ग्राम पंचायत को दिया, तन्मय तुझे गांव आहे बरोबर करणार के नाही, विलेजर्स को दिया, पार्थ वारू, और टर्टल फ्रेंड्स क्लब को दिया। Sustainable means which can be continued for a long time, which can be continued over for a long time. Now we are happy कि प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है और हमें जब जरूरत होती है तभी हम वहां जाते हैं। ये जब मैंने पढ़ा तब मेरे दिमाग में कुछ छोटी छोटी थोड़ी आइडियाज हैं, शेयर करूं। सबसे पहले, आज हमारा इंडिया इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है, लोग कहते हैं अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, अरे इसके प्रॉब्लम्स बहुत ऐसे हैं, इसके प्रॉब्लम्स ये हैं। मगर मैं मानता हूं सम स्मॉल स्टेप्स, आप जैसे कंप्यूटर है बराबर, आपकी गेम्स है बराबर, स्टार्टिंग में गेमर को, आप लोग की भाषा में बोलता हूँ, स्टार्टिंग में गेमर को, एक व्हाट्सएप डेवलपर को, एक फ्री फायर वाले को
पहले एक सॉफ्टवेयर कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाना होता है। एक बार वो प्रोग्राम बन गया, एक बार उस प्रोग्राम के सब सिस्टम्स बन गए, बाद में उसको क्या करना है, सिर्फ वो कंप्यूटर्स में डालना है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। बाद में वापस वो कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत है। जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर और इन योर मोबाइल, एंड बाद में सब चीजें अपने आप चलती रहती हैं। तो ये सारी नॉवेल आइडियाज उसी सॉफ्टवेयर की तरह। अगर हमारे स्कूल्स में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे स्कूल में कम से कम 1 साल ऐसा होना चाहिए कि 6 महीना आप लोग को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और 6 महीना आपको सोशल वर्क करवाया जाए। केजी से 10 तक यही सब रटाए जाते हैं। इससे अच्छा 1 साल ऐसा कर दें कि 1 ईयर सोसाइटी के नाम, और उस ईयर में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसमें से 6 महीना आपको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, ताकि मेरी बेटियां रेडी हो जाए, कोई भी नालायक उन पर आंख भी उठा के न देखें। और बाकी के 6 महीने उनको विलेज में ऐसी कोई ना कोई नॉवेल आइडियाज दे दे। उन हर विलेजेस में, गांव में आपको जस्ट एक सॉफ्टवेयर रखना है। सॉफ्टवेयर का मतलब, सपोज आप एक विलेज में जा रहे हो तो वहां पे सिर्फ एक स्कूल डेवलप कर देनी है। वहां के स्कूल में कुछ बच्चों को पढ़ा के उनको रेडी कर देना है, ताकि वो लोग दूसरों को ट्रेनिंग दे सके, दूसरों को पढ़ा सके। वहां पे ही आपको ऐसे ही मित्र, जैसे यहाँ पे कासव मित्र हैं, जैसे विलेज मित्र बना दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे सारे बच्चे, हमारे पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे, हर विलेज में जाके अगर हर जगह पर इस तरह के सॉफ्टवेयर डाल दें। वो सॉफ्टवेयर 3 ही प्रोसेस का है। द फर्स्ट इज एजुकेशन, तो रिमूव इलिटरेसी, रिमूव सुपरस्टिशन, ब्रिंग सेक्युलरिज्म, ब्रिंग डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट नेचर। इनफैक्ट मैं तो बोलूं, सर ये आप क्या बोल रहे हो? वेल, आप लोग को आगे चलकर है ना एक ऐसे कंपटीशन भी आएगा, व्हाट यू वुड डू टू हैव योर कंट्री, यू नो, गेट योर कंट्री डेवलप, या तो ऐसे कुछ ऐसे कंपटीशंस आएंगे, तो उसमें भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो। प्लस, हैव आई एवर टॉक्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ IVL? शायद आपको फुलिश लगे, शायद आपको स्ट्रेंज लगे, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो वांट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ IVL? तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ IVL बताता हूँ, ये कभी किसी ने किया नहीं है, क्या पता आप लोग में से कोई शुरू करते हैं। हमारे वहाँ अमीर बहुत लोग हैं, एक्टर्स बहुत लोग हैं। हमारे वहाँ IPL में बहुत बिजनेस होता है। IPL की टीम्स होती हैं, उन टीम्स को, you know, I will speak it in English so that you can write it in your English essays whenever you want. There are, नहीं मगर English में तुमको समझो से बाद में, okay, I'll mix it up. So there are teams, they buy teams and then they work for the teams, and then the teams play and we watch those teams playing. At the same time, there are some reality shows. We all love to watch that reality shows. Many people see that, all that Big Boss and all that trash. I mean to say roadies and all that things which you love. क्योंकि हमारे इंडिया में रियलिटी शोज और IPL बहुत चलता है। क्यों ना इसको कंबाइन कर दे? क्यों ना तुम लोग एक ऐसा बनाओ कि IVL, हमारे जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उन सबको बोलो भाई एक गांव एडप्ट कर दे और उस एक गांव को अपना नाम दे दे। बराबर, वेलास्क नाइट राइडर्स, द विलेज एडप्टेड बाय शाहरुख खान। और बाद में उस विलेज में उन लोग को ये 5 चीजें डालनी है। सबसे पहला, एजुकेशन, इलिटरेसी हटाओ, क्लीनलीनेस लाओ, अक्षय कुमार तो ऐसे ही पैडमैन और सब बनाए। फार्मिंग और लोकल ऑक्यूपेशंस को बढ़ावा दो, ताकि उनके गांव में ही उनको इतना सब मिल जाए कि उनको किसी शहर में आके फुटपाथ में सोने की जरूरत ना पड़े, शहर में आके बेगिंग की जरूरत ही ना पड़े। जस्ट स्ट्राइक द रूट ओवर देयर, उनको वहां पे ही इतना सब दे दो। डेवलप करो वहां पे हॉस्पिटल्स, डेवलप करो ये। और ये सब बिग बॉस की तरह पूरा 4 महीना, यू नो, इट इज लाइक रियलिटी शो की तरह पूरा 4 महीना 24 घंटे एक और एक सीरियल, एक कोई भी जी टीवी, फ्री टीवी, सोनी टीवी, पूरा ऐसे यू नो रिकॉर्ड करें और उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बना के दें। जस्ट इमेजिन करो, IVL और ये बिगेस्ट बॉस मिलके, ये रियलिटी शो मिलके, अगर हमारे सारे अमीर लोग एक एक गांव को एडप्ट करें तो इंडिया में ऑटोमेटिकली गरीबी वैसे ही दूर हो जाएगी। और ये 5 महीना भी चले तो 5 महीनों में उनको वहां पे एक सॉफ्टवेयर ही बिठाना है। सॉफ्टवेयर बिठाना है यानी कि किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं डालना है। जैसे इन लोग ने लोकल लोगों को तैयार किया,
वैसे ही ये 5 महीना अगर वो अमीर बंदे वहां पे एक बंदे को तैयार कर दें और वहीं पे ही इकोनॉमी रन करवाने लगे, जैसे मैंने आपको इकोनॉमी की स्टोरी बोली थी, इकोनॉमी कैसे चलती है जब पैसे भागते हैं। तो सोचो, एक साल आईपीएल की जगह अगर आईवीएल और ये बिगेस्ट बॉस अगर हर गांव में हो जाए तो हमारे इंडिया की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व के नहीं। सर व्हाट अ पक्का हुआ आइडिया। इसको आप वर्ड्स में, ये मैंने क्यों बोला, इट इज जस्ट इफ यू कैन पुट दीज आइडियाज इनटू वर्ड्स एंड देन राइट इट इन अ कंपटीशन, हु नोज, यू माइट विन इट। बराबर। So that was the chapter. I hope so you loved it. Hope so you liked it. A story of sea turtles. Pakka, because of your participation, because of जब हम लोग ने देखा कि टर्टल्स भाग रहे थे तो हम लोग ने कितना मस्त किया, मजा आया। तो थैंक यू। जरा रिकॉर्डिंग को 2 मिनट के लिए बाय बाय बोल देते हैं क्योंकि पार्ट 1 एंड होता है, पार्ट 2 थोड़ी देर में शुरू होगा। बाय बाय पार्ट 1, बाय बाय पार्ट 1।